Good morning, students, and welcome to the lecture on multivariable calculus differentiation. In this lecture, we shall study about the continuity or partial derivatives of the multivariable functions. So first of all, we define what is the continuity of the function of two variables, and later on we define partial derivatives for the function of multivariables. So if you remember, in case of one variable, if your function is given as y equals to fx, y equals to fx, this is your function, then we can say that this function is continuous at the point x equals to a if limit of this function at x equals to a is equals to the value of the function at that point a. This is our definition for the continuity for one variable function. Similarly, we can extend this definition for the two variable and more than two variables. So a function fxy is continuous at the point x naught comma y naught if f is defined at that point x naught comma y naught and limit of the function is exist at the point x naught comma y naught, and also this condition hold. It means limit x naught y naught f of xy equals to function value at the point x naught comma y naught. So similar definition जो हमने वन वेरिएबल में पढ़ी है, राइट? कि आपका कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड एट दैट पॉइंट, ऑलराइट? फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए एंड उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड वी नो हाउ डू वी फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन. वी हैव ऑलरेडी discussed about this one in the previous lecture, alright? And last condition is that limit must be equal to the function value at that point. If these three conditions hold, then we can say that our function fxy is continuous at the point x naught comma y naught, right? So this is our standard definition for the continuity of the function of two variables. Now there are some important remarks here. A function is continuous if it is continuous every point of its domain. It means आपका कोई function define है over some domain, and if your function is continuous at that domain, then we can say that your function is continuous at every point of its domain. It means suppose आपका ये domain है जहाँ पे आपका ये function define है, alright? It means your function is defined f of x comma y. This is your function where x and y are belongs to domain D. If your this function is continuous in domain D, इस डोमेन के अंदर कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है? योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस डोमेन डी. इसके अंदर जो भी पॉइंट आप लेंगे उन सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. सो इन जनरलाइज केस, यदि आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी डोमेन के अंदर, इट मींस योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. कोई वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा. Second condition is that a function which is not continuous at a point is said to be discontinuous there. It means जहाँ पे आपका function continuous नहीं है, उस point को हम बोलते हैं discontinuous point. Alright? So a function which is not continuous at a point is said to be a discontinuous there, and that point is known as a discontinuous point. Third condition is that the sum, difference, products and quotients, provided the denominator does not vanish, of two continuous functions are continuous on their domains. जो वन वेरिएबल के फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज थी कंटिन्यूस फंक्शन की सेम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है. इट मींस यदि आपके पास में दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, और उनका कोसेंट जो आप फ्रैक्शनल फॉर्म लेंगे f अपॉन g, वो भी आपका कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड दैट द डिनोमिनेटर डज नॉट वेनिश एट दैट पॉइंट. तो ये आपकी सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए कि
फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है? योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डिसकंटिन्यूटी का मतलब जहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वो आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, और आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी इज, let us see the example based on this one. The function fxy, which is defined as 2xy upon x square plus y square for xy not equals to 0, 0, and it is 0 for xy equals to 0. So जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, तो हमको ये तीनों कंडीशंस चेक करनी होगी। तीनों कंडीशंस कौन सी है आपके पास में? दिस वन, योर फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। Okay, so let us check one by one. So you can see आपका फंक्शन वेल डिफाइन है, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं 0,0 पे फंक्शन वेल डिफाइन है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इट मींस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट द पॉइंट 0,0. Alright. Now next we find the limit of this function at the point 0,0. It means we need to calculate this value, limit of xy approaches to 0,0 f of x comma y. So we need to find the limit of this function at the point 0,0. And we know how do we find the value of the limit by using different paths. Different paths हम लेंगे, जहाँ पे सभी paths के अकॉर्डिंग यदि आपकी लिमिट यूनिक आती है, then we can say that limit of the function is exist. और यदि आपके पास में लिमिट यूनिक नहीं आती है, then we can say that your limit of the function does not exist. So let us take different paths to find the limit, right? So if you remember, हमारे पास में 0,0 पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे हमको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। इट मींस इस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, राइट? सपोज दिस इज अवर x axis, this is our y axis. So we find the limit by using different paths. Now if you approach along the x axis, आप x axis के along चलते हैं, along the x axis, जहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। Now if you put the value of y equals to 0 here, then limit will be 0. All right. Similarly along the y axis, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। So along the y axis आपकी x की वैल्यू 0 है, and in that case your limit is also 0. और यदि हम कोई थर्ड एक लाइन लेते हैं which passes through the origin, suppose this is our y equals to mx line, where m is the slope of the line, right? Now if you put y equals to mx in this relation, right, तो y की जगह आप mx पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2mx स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, right? Now if you simplify this one, then we get this relation 2m upon 1 plus m square, which is free from x and y. यहाँ पे ना x है ना y है. It means if you consider this part y equals to mx, your limit of the function depends on the slope of the line. जो आप लाइन कंसिडर कर रहे हैं y equals to mx, उसके स्लोप पे डिपेंड कर रही है। यदि आपके पास में स्लोप की वैल्यू चेंज करते रहते हैं हम, तो आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज होती रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। So you can say that limit of the function does not exist here, because आप m की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको लिमिट मिलेगी 0। m इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो आपकी लिमिट हो जाएगी 1। m इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी 4/5। इट मीन्स आपके पास में जैसे जैसे आप पाथ लेते हैं तो आपकी लिमिट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। So you can say that limit of the function does not exist. All right. Limit of the function does not exist. जब आपके पास में फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो then you can say that your function is not continuous at that point.
कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट है। नॉट एग्जिस्ट का रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास में जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट? So you can say that your function does not exist, does not have a limit at the point 0, 0. So we can say that our function is not continuous at the point 0, 0. Alright? तो आपका जो फंक्शन है वो 0, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, बट इसके अलावा सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट? आप कोई सा भी पॉइंट लेंगे उस केस में आपके जो फंक्शन की लिमिट है आप उसकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? Because if you consider here x y इक्वल टू 1, 1, यदि 1, 1 पे आप निकालते हैं तो 1, 1 पे आपके फंक्शन की वैल्यू उसकी लिमिट के इक्वल हो जाएगी। यू कैन इजीली वेरीफाई दैट, राइट? So this is the example where your function is not continuous at the point 0, 0, although the function is well defined at the point 0, 0. ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? बिकॉज यदि हम डिफरेंट पाथ लेंगे, y इक्वल टू mx हमारा पाथ है, जहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन है, राइट? स्लोप ऑफ द लाइन। यदि आपका स्लोप 0 है तो आपकी लाइन ये होगी, आपका स्लोप यदि 0.8 तो आप 0.8 है तो आपकी लाइन ये है, 1 है उस केस में लाइन ये है। इट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? सो इस तरह से आपकी ये डिफरेंट आपकी लाइंस होंगी जो 0 से पास हो रही है, बट उन केस में आपकी जो लिमिट है वो आपको डिफरेंट मिल रही है। So the limit changes with m. There is therefore no single number we may call the limit of f as a xy approaches to the origin. The limit fails to exist and the function is not continuous at the point 0, 0. Right? तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 0, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, right? So this is all about the continuity of the function at the point 0, 0. Now next article is partial derivatives, right? Now if you remember, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, यदि आपके पास में कोई फंक्शन है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इफ y इक्वल्स टू fx, वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस केस में आपका जो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x वो क्या होगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? dy अपॉन डी ऑफ x मिलेगा। इट मीन्स d अपॉन डी ऑफ x f ऑफ x। इट मीन्स आपके पास में कोई फंक्शन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इन दैट केस आपका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। बट सपोज योर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इफ z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो उस केस में हमारे पास में जो z के पार्शियल डेरिवेटिव, z के जो डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो कौन से डेरिवेटिव्स होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। इट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिलेगा? डेल z अपॉन डेल ऑफ x। यहाँ पे जो डेल है दैट डिनोट दी पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपको इस टाइप के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को हम d से रिप्लेस करते हैं और पार्शियल को हम डेल से रिप्लेस करते हैं। ऑलराइट, दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव, और d हम यूज करते हैं फॉर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो जब भी हमारे पास में कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है, वी कैन से दैट डेरिवेटिव्स मस्ट बी पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? सो लेट एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास में जो फंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, x एंड y। देन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू x एंड y आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f। इट मींस इस फंक्शन का x और y के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव्स होंगे वो हमारे कौन से डेरिवेटिव्स होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे।
राइट। 2 के अलावा 3 वेरिएबल भी हो सकता है आपका फंक्शन, 4 वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। उस केस में आपके जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे वो आपके सारे के सारे डेरिवेटिव्स कौन से होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। और टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएटिंग। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल व्हाइल कीपिंग द अदर वेरिएबल फिक्स्ड। तो जब भी हम सपोज हमारे पास में ये फंक्शन है, इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम y को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, राइट, एज ए फिक्स नंबर कंसीडर करेंगे, है ना। तो जब भी आपके पास में कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का है, आप जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल्स को आप क्या मानेंगे? फिक्स्ड वेरिएबल्स मानेंगे, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू x square plus y square. So you can see from here that your function z is the function of two variable x and y. तो यहाँ पे यदि आप z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपका डेरिवेटिव होगा पार्शियल डेरिवेटिव। सो डेल z अपॉन डेल ऑफ x। तो जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जो अदर वेरिएबल y है उसको हम फिक्स मानेंगे, एंड वी नो दैट जो आपके पास में कांस्टेंट जो वैल्यूज है उनका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 0 होता है। सो फ्रॉम हियर del z अपॉन डेल ऑफ x इक्वल्स टू 2x। सिमिलरली इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? del z अपॉन डेल ऑफ y इक्वल्स टू 2y, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा? x कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, z इक्वल्स टू 2xy। तो यहाँ से del z अपॉन डेल x आपका क्या हो जाएगा? इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। del z अपॉन डेल y निकालेंगे आप यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये हमारा निकालने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, उनकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। एंड वी नो that the derivative of the constant function is always 0, right? तो ये आप हमेशा याद रखिए, this is very important to find the partial derivatives, right? So let us define the mathematical definition for the partial derivative. आपका कोई फंक्शन है, उसका यदि आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इफ यू रिमेंबर, यदि आप लोगों ने 11th-12th में डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, इफ यू रिमेंबर, y equals to fx, this is your given function. इसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन इफ यू रिमेंबर, dy अपॉन डी ऑफ x किसके इक्वल थी? लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। यदि आपका कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल निकाल रहे हैं किसी पॉइंट x के ऊपर, तो ये हमारे पास में इसकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब आपको यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है, राइट। यदि आप इसमें x इक्वल टू a पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह आप a रिप्लेस कर दीजिए, और 0 पे निकालें तो x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, राइट। तो सेम केस यहाँ पे होगा। हमारे पास में फंक्शन है, इसका एक्स वाई के पॉइंट के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वो क्या होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। ये हमारे नोटेशंस हैं। एफ सफिक्स के अंदर यदि एक्स आपका, इट मींस इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि सफिक्स में एक्स आ रहा है तो हमारे पास में इसका मतलब क्या है?
derivative of this function with respect to x. So you can write it as del f upon del of x. All right. And from the above definition, derivative of f with respect to x, it means keeping y as a constant. Y की वैल्यू आपको क्या रखनी है? As a constant ट्रीट करनी है. तो वेरिएशन किसके अंदर होगा? ओनली x के अंदर होगा. और यदि हम इस डेफिनेशन का यहाँ पे अप्लाई करते हैं, x में वेरिएशन होगा, ओनली y आपका फिक्स रहेगा. तो x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एच. बिकॉज हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है? 2 वेरिएबल फंक्शन है. यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था? 1 वेरिएबल फंक्शन था. यहाँ पे आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे तो आपका x में वेरिएशन था. यहाँ पे आपका फंक्शन 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे x में वेरिएशन होगा, y आपका कांस्टेंट होगा. सो यू कैन सी, so limit h approaches to 0, f of x plus h comma y minus f of x y upon h. This is the partial derivative with respect to x. All right. यदि हमारे पास में x comma y है, उसकी जगह कोई पॉइंट आपके पास में a comma b हो जाए सपोज, उस केस में आपकी ये जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी? लिमिट ऑफ h approaches to 0. ठीक है. x की जगह आप a पुट कर देंगे और y की जगह b पुट कर देंगे इसके अंदर. सो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, इट मींस a प्लस h कोमा b माइनस f ऑफ a कोमा b डिवाइड बाई h. ऑलराइट, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी यदि आप इस फंक्शन f का एट द पॉइंट a कोमा b पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं विद रेस्पेक्ट टू x. इट मींस x में चेंज हो रहा है. यहाँ पे x की जगह क्या है? a प्लस एच है यहाँ पे. ठीक है. आपका y फिक्स है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है. Now similarly we can find the partial derivative of the function f with respect to y. So यहाँ पे आप देख पा रहे हो y क्या है? सफिक्स के अंदर है. It means partial derivative of the function with respect to y. So del f upon del of y equals to derivative of the function fxy with respect to y keeping x as the constant. तो अब आपका इसमें क्या हो जाएगा? x आपका फिक्स होगा, y आपका वेरी करेगा. So you can write limit k approaches to 0 f of x comma y plus k minus f of xy upon k. Alright. So ये आपकी partial derivative of the function at the point with respect to y हो जाएगा. It means x आपका क्या है? फिक्स है. यहाँ पे y में वेरिएशन है ओनली. प्रीवियस केस में क्या था? x में वेरिएशन था. यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस है, बट आपका y फिक्स है. Right? So this is our partial derivative with respect to y. So you can see यदि आपका a कोमा b पे यदि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ k अप्रोचेस टू 0. x की जगह आप a फिक्स कर देंगे. सो f ऑफ a कोमा y की जगह हो जाएगा b प्लस k माइनस f ऑफ a कोमा b डिवाइड बाई k. So this is our partial derivative of the function with respect to y at the point a comma b. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है. x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, उसका नोटेशन सफिक्स के अंदर x आएगा. कुछ प्रॉब्लम्स में आपको डेरिवेटिव्स इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स में आपका पार्शियल डेरिवेटिव इस फॉर्म में भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव है और इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव है. ऑलराइट. So remember these definitions to calculate the partial derivatives with respect to x and y. Now next one question arise, what is the geometrical interpretation of the partial derivative? जो हमने यहाँ पे partial derivative निकाला है उसका geometrical interpretation क्या है? If you remember y equals to fx था. इसका यदि आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे dy upon d of x,
इसका मतलब क्या था आपके पास में, यदि किसी पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ दैट लाइन एट द पॉइंट, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस पॉइंट के ऊपर जिस जहां पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसका टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट। ठीक है, आपका फंक्शन है, उसका x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है, x इक्वल टू ए पे आपका जो फंक्शन का ग्राफ है उसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये है आपके पास में, यदि आपने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप इसका, राइट, तो इस पॉइंट पे यदि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसमें जो स्लोप होगा यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे टच करेगा, राइट, ये स्लोप हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट, राइट। ये स्लोप जो भी है, स्लोप का मतलब एंगल विद द एक्स एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है आपके पास में, थीटा होगा जो भी है, तो वो हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। सेम केस यहाँ पे है, यदि आपके पास में फंक्शन क्या है, मोर देन वन वेरिएबल है, तो उसके जो आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, राइट। सो वी कंसिडर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, so you can see the geometrical meaning of the partial derivative fx, fx का मतलब यहाँ पे क्या है, partial derivative with respect to x, it means by keeping y, जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आपकी y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड सपोज दैट कांस्टेंट इक्वल्स टू y इक्वल्स टू b, एंड इफ यू रिमेंबर यदि आपका कोई फंक्शन है z इज द फंक्शन ऑफ x, y, और यहाँ पे यदि y इक्वल्स टू b है तो ये हमारे पास में मल्टी वेरिएबल केस में y इक्वल्स टू b किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, यदि आप लोगों ने पढ़ा याद है तो। सो y इक्वल्स टू b इन केस ऑफ एक्स वाई प्लेन, उस केस में हमारे पास में एक्स वाई प्लेन के अंदर y इक्वल्स टू b क्या हो जाएगी, एक फिक्स लाइन हो जाएगी। यदि आपके पास में एक्स वाई प्लेन है और y इक्वल्स टू b है तो ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। बट यदि आपका प्लेन जो डोमेन है वो 3 डायमेंशनल डोमेन है, उस केस में आपका जो y इक्वल्स टू b हो जाएगी वो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस, राइट। So we take y as a constant, it means suppose y equals to b and let x varies, right? So आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका फंक्शन है, just a minute. So this is your surface of the given function, जो भी आपका फंक्शन है z equals to f of x y, ये जो शेडेड रीजन है that is our surface of the given function z equals to f of x y. Now we need to find the partial derivative of this z equals to f of x y with respect to x. It means del z upon del x निकाल सकते हैं या del f upon del of x आप निकाल सकते हैं। इसमें y क्या रखेंगे आप, फिक्स रखेंगे आप, x आपका वेरी करेगा, ठीक है, वेरिएबल रहेगा आपका। सो वी टेक y इक्वल्स टू b, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और आपकी ये z एक्सिस है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू b का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सपोज दैट इज b पॉइंट, सो y इक्वल्स टू b हमारे पास में इस तरह का एक शेडेड रीजन होगा। सो दिस इज अवर y इक्वल्स टू b प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में। सो दिस इज द वर्टिकल प्लेन y इक्वल्स टू b, राइट। सो ये हमारे पास में जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है एक स्ट्रिप फॉर्म में, दैट इज अवर y इक्वल्स टू b वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और ये हमारे पास में इस प्लेन के अंदर हमारे पास में जो फंक्शन है z इक्वल्स टू f ऑफ x, y, जहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी b, तो हमारे पास में जो ये ग्राफ बन के आएगा 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी यहाँ पे, अब बिकॉज आपका y क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो आपके वेरिएशन किस में रहेंगे, x और z के अंदर रहेंगे,
तो हमारा फंक्शन बन जाएगा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा बी, जहाँ पे b की वैल्यू आपकी फिक्स है। सो इट मीन्स आपका एक सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगी, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम, जहाँ पे डोमेन आपका क्या हो जाएगा, एक्स जेड डोमेन हो जाएगा ना, एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं आप इसमें। सो एट y इक्वल टू बी योर फंक्शन वैल्यू विल बी f ऑफ x कॉमा बी। सो आपका जो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा वो ये वाली ब्लैक लाइन हो जाएगी। ऑलराइट, और यदि हम आप x इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस पर कोई ए पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास में करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एफ ऑफ ए बी, राइट, बिकॉज हमारा फंक्शन क्या है, 3 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शन है। सो x इक्वल टू ए पे हमारे पास में इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं, ए बी एफ ऑफ ए बी, राइट। नाउ इफ यू टेक द लिमिट, अब आपका लिमिट क्या होगी, x में वेरी कर रहा है, तो इट मीन्स वी कंसिडर नेबरहुड पॉइंट a प्लस h, राइट। तो इट मीन्स आपके पास में सेम केस जो हमने डेफिनेशन में अप्लाई किया वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इस पॉइंट पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इट मीन्स इसके नेबर में कोई दूसरा पॉइंट लेंगे हम, ए के नेबर में हमने a प्लस एच लिया, जहाँ पे ये हमारे पास में इस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस एच कोमा बी कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या है, a कोमा बी कोमा एफ ऑफ ए कोमा बी, राइट। जो हमारी डेफिनेशन है उसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन की जो कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लेंगे डिवाइड बाय एक्स की जो डिफरेंसेज है उनको लेंगे, ठीक है। तो आप यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी डेफिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ए। इट मीन्स इसका इसके साथ में डिफरेंस लेंगे तो ए प्लस एच माइनस ए, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इट मीन्स एफ ऑफ this one f of a plus h comma b minus f of a b divided by a plus h minus a। so ये किस में कन्वर्ट हो रही है, जो हमारी प्रीवियस डेफिनेशन थी, a plus h comma b minus f of a comma b upon h। now if you take the limit h approaches to 0, यदि आपकी जो h है इसको आप 0 की तरफ लाते हैं तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, a पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारे पास में ये जो लाइन है वो क्या बन जाएंगी, एक टेंजेंट लाइन बन जाएंगी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ए पे। सो दिस इज अवर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। सो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, it means keeping y is a constant, suppose y equals to b and let x varies, the path traced on the surface is the curve of intersection between the plane y equals to b and the graph of the function. This curve is sometimes called as an x curve because यहाँ पे x vary कर रहा है। The partial derivative of this is denoted by fx at ab is the slope of the tangent to this curve, x curve at the point ab। Okay? तो ये हमारा इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया पार्शियल डेरिवेटिव का। Let us find some partial derivatives. Find the values of del f upon del of x and del f upon del y for the following functions. हमारे पास में ये फंक्शन है 2 वेरिएबल का है, एंड ये भी हमारे पास में 2 वेरिएबल फंक्शन है। Now first we find the partial derivative of this first function with respect to x and y. And if you remember, यदि x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो आपका y क्या हो जाएगा, फिक्स वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। सो वी लेफ्ट विद द टर्म्स ऑफ x ओनली, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास में क्या हो जाता है, 2x होगा, और x का डेरिवेटिव 1 होगा। So therefore the partial derivative of this with respect to x is 2x plus 1. Similarly यदि हम इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास में x भी आपका फिक्स होगा यहाँ पे, और ये भी फिक्स होगा। So इनके डेरिवेटिव्स आपके 0 रहेंगे। So इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास में, 2y हो जाएगा।
So these are the partial derivative of the given function f at with respect to x and y. सेम केस यहाँ पे है. विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट मीन्स आपका ये न्यूमरेटर में y फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा. सो यू कैन कंसिडर दिस एज ए 1/1 प्लस कॉस ऑफ x. इस फॉर्म में आप इसको अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ये क्या है, y कांस्टेंट है आप यहाँ पे. एंड आप यदि इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव होगा, तो इसके लिए आपको फ्रैक्शनल पार्ट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास में 1/cos x ही मान लीजिए, आपके पास में 1/cos ऑफ x गिवन है, 1 प्लस cos x ही मान लीजिए आप इसको, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप यदि इस तरह से अज्यूम करें तो आपका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 प्लस cos x. 1 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 टाइम्स 1 प्लस cos x, ठीक है, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x. सो यू कैन राइट माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos ऑफ x का स्क्वायर. ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी ना, डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन g. यदि आपके पास में f अपॉन g की फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब क्या है, g मल्टीप्लाई बाई f प्राइम माइनस g प्राइम मल्टीप्लाई बाई f अपॉन g स्क्वायर. तो हमने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज की है. आपका फंक्शन f अपॉन g की फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, g मल्टीप्लाई बाई f प्राइम माइनस g प्राइम मल्टीप्लाई बाई f डिवाइड बाई g स्क्वायर. यहाँ पे जो प्राइम है इसका मतलब क्या है, दिस इज अवर प्राइम. इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है. तो हमने यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन यूज की है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस कॉस ऑफ x. सो यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉस ऑफ x. नेक्स्ट हमारे पास में 1 प्लस कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, एंड 1 एज सच रहेगा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर. तो आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट. तो सेम थिंग यहाँ पे करना आपको यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y कांस्टेंट है तो उससे कोई चेंज करना ही नहीं आपको, तो चेंज किस में रहेगा, ओनली x की कंडीशंस पे रहेगा. तो ये आपके मिल जाएगा 2y sin x डिवाइड बाई y प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना. यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 2y sin x डिवाइड बाई y प्लस cos x का स्क्वायर. एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यदि आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लीजिए ये इस फंक्शन में. सो इसका डेरिवेटिव इसको आप मान लीजिए f मान लीजिए और डिनोमिनेटर को आप g मान लीजिए. तो इसका यदि g डॉट f प्राइम, तो g मतलब y प्लस कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 2y, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस g प्राइम, इट मींस इस डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू y क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 होगा बिकॉज कॉस ऑफ x तो क्या है, x का फंक्शन है, तो ये बन जाएगा 1 डॉट 2y, ऑलराइट, अपॉन g स्क्वायर, इट मींस y प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज -2y एंड दैट इज +2y, सो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. सो यू लेफ्ट विद 2 cos of x डिवाइड बाई
y plus cos of x square which is same this one. ठीक है, तो जब भी आपके पास में फंक्शन रेशनल फॉर्म में गिवन है f अपॉन g की फॉर्म में गिवन है तो आप डेरिवेटिव इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाल सकते हैं g टाइम्स f प्राइम माइनस g प्राइम टाइम्स f डिवाइड बाय g स्क्वायर. So you can easily calculate the partial derivatives with respect to x and y. यदि आपका फंक्शन रेशनल फॉर्म में गिवन है so note down this formula. Let us take one more example. Given the function fxy equals to x squared sine of xy, then find the partial derivatives del f upon del of x and del f upon del of y. अब आप क्या लिखें? First of all, we find the value of del f upon del of x, taking y as a constant. अब यहाँ पे आप इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. इट मीन्स आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है, f मल्टीप्लाई g की फॉर्म में है, तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा f डॉट g प्राइम प्लस f प्राइम डॉट g. ऑलराइट, तो ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन है. डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हमारे पास में दो फंक्शंस हैं f एंड g, इनका प्रोडक्ट है, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा? f डॉट g प्राइम प्लस f प्राइम डॉट g हो जाएगा. सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है तो हमारे पास में ये रिलेशन है, और यदि आपका फंक्शन रेशनल फॉर्म में है तो आपके पास में प्रीवियस वाला फॉर्मूला है. सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. लाइक सो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है हमको. सो दिस इज डेल अपॉन डेल ऑफ x स्क्वायर्ड साइन ऑफ xy. राइट, आपके पास में एक तो फंक्शन ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा फंक्शन साइन हो गया, तो आप इसको x स्क्वायर को f मान लीजिए, साइन को g मान लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्राइम, इट मींस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो डेल ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय डेल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g साइन ऑफ xy प्लस f multiply by g prime, it means sine of xy का with respect to x derivative, and we know that the derivative of x square with respect to x is 2x. तो इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ xy, x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे रहेगा, साइन ऑफ x कोमा y, साइन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? cos ऑफ xy, और यहाँ पे एक्स वाई को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा यहाँ पे. cos डेल ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज y टाइम्स cos ऑफ x कोमा y. सो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन x स्क्वायर्ड साइन ऑफ x कोमा y. ठीक है. Similarly, we can find the partial derivative with respect to y taking x that constant. ठीक है, सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पे भी यूज करना है, डेल अपॉन डेल ऑफ y x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई. अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, इट मींस x आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. इट मींस आपके पास में सिंपल साइन ऑफ y का डेरिवेटिव निकालना है, एंड वी नो दैट द साइन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है हमारे पास में, दिस इज इक्वल टू x टाइम्स cos ऑफ एक्स वाई. साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा और एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y, x रहेगा आपका. ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज x टाइम cos ऑफ एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, सो देयरफॉर दिस इज x क्यूब cos ऑफ एक्स वाई. सो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन with respect to y. ठीक है, so you can easily calculate the partial derivatives with the help of the appropriate formula. Right, so thank you for today. We'll continue in the next lecture. आज के लिए इतना sufficient है ना?